Okay, I think in the last lecture we were discussing about deflection and we have completed deflection in the last lecture. In this particular lecture we'll start with how to solve indeterminate structures. Okay, how are we going to get the redundants or the extra forces that are present in your indeterminate structure? That is what the focus will be. Before we start with our indeterminate structure, one question that is sometimes asked in objective or interviews is this one: why do we need indeterminate structure? Okay, why do we need indeterminate structure? Indeterminate structure. The answer is pretty simple, or you can frame this question like this: what are the benefits of using an indeterminate structure? Okay, obviously from calculation point of view, you can say that indeterminate structures you have to do more calculation. Okay, you have to do more calculation, okay, in indeterminate structures. Indeterminate structures. The plus point that we have is, suppose I want to give you a simple anecdote. So let's compare this type of structure. Suppose you have a fixed beam like this, okay, and you have a simply supported beam. Okay, let's have a simple comparison of determinate and indeterminate structure. This structure on your left is an indeterminate structure. Okay, obviously it is an indeterminate structure. Okay, and this structure here is your determinate structure. Okay, now suppose on the structure, suppose some loading is acting P, and the same loading P is acting on this one also. This beam will deflect something like this, isn't it? And this beam will deflect something like this. I think in the very first lecture we have discussed what is the value of this deflection here and what is the value of this deflection here. Suppose if I am calling this deflection del naught, okay, I have already told you in the first lecture that this del prime will be equal to del naught upon 4. Is it okay? What is the maximum moment that will come here? Deflection is del naught. Bending moment maximum that comes in your simply supported structure is PL upon 4. On the contrary, the maximum moment that comes here is PL by 8. Okay, so from here you get a very simple idea. Okay, you can issue a statement here that indeterminate structures will have less forces, okay, less value of your force and less deflection also. Okay, so this is a very big plus point, that the forces that are induced in your indeterminate structures are less. See here, bending moment is less here as compared to your determinate structure, and your deflection is also less in case of indeterminate structure as compared to your determinate structure. So this is one of the plus point of using indeterminate structure, that you get less stress and less deflection also. There is another plus point of using an indeterminate structure. It's called formation of plastic hinge. Okay, formation of plastic hinge. If you have some indeterminate structure like this, okay, and you are applying some loading P, okay, if you keep on increasing this load P, okay, there will come a point where you will have these type of plastic hinge formation in your beam. Okay, what this plastic hinge does is it gives you additional, okay, additional load carrying capacity. Okay, additional load carrying capacity. So this is another plus point of using your indeterminate structure. You don't have any such formulation in your determinate structures. Okay, now that you have understood that how intermediate structures are beneficial to us, let's start about their analysis. Okay, analysis of indeterminate structures. Okay, it's better if we make a comparison. You have basically two methods. Okay, so it's better if we have a table type of thing. Okay,
something like this. Okay, you have two basic method of analysis, namely they are the force method, okay, of analysis, and you have displacement method of analysis. Okay, from the name itself it is clear that in force method of analysis the unknowns that we are going to have is your forces, okay, is your forces or your reactions, whatever you are having. Okay, in displacement method of analysis your unknowns are going to be your displacements, that is your delta and theta. Okay, delta and theta. This type of approach, force method of analysis, will make use of compatibility equations. Okay, we'll come to that, what is compatibility equation, later. So you just, for now, you just remember that force method is going to need additional equations. Okay, suppose you have some indeterminacy, suppose you have indeterminacy of 2, so you need 2 additional equations to solve the structure. Okay, indeterminacy we have discussed already. Indeterminacy means that how many additional equations I need to solve the structure. So if your indeterminacy is 2, that means you need 2 more equations to solve the structure. Those 2 equations are called as your compatibility equation. Okay, in displacement method of analysis you will make use of only equilibrium equations. Next, what you can say here is, this will be used, force method of analysis will be used when your ds is less than dk. ds and dk I think we have already discussed in the very first lecture, indeterminacy. ds is your static indeterminacy and dk is your kinematic indeterminacy. Static indeterminacy deals with forces, isn't it? And your kinematic indeterminacy deals with your displacements. Okay, so if the displacement unknowns are more, it is obvious that we want to choose less number of unknowns. If the number of unknown forces are less, you will go by force method of analysis. Is it okay? So whenever your ds is less than dk, you will go for force method of analysis. Okay, on the contrary, if your dk is less than ds, okay, you will go for displacement method of analysis. This method is also called flexibility method. Okay, flexibility method or compatibility method. And this method, particularly displacement method, is famously called as your stiffness method. Okay, stiffness method of analysis. Some example of the methods that comes under force displacement is examples is your first one that we are going to study is method of consistent deformation. Okay, method of consistent deformation. You have other method also, you have Castigliano's theorem. Okay, Castigliano's theorem, don't mind the spelling. Unit load method, another energy methods, unit load, okay, and other energy methods come under force method of analysis. If you come to your stiffness method of analysis or displacement method of analysis, you have slope deflection method. Okay, you have your moment distribution. Okay, these two are very famous method, we will study them in detail, slope deflection and moment distribution. Okay, then you have your matrix method of analysis, okay, and there is one method which is not in your course but you can remember the name, it is called Carney's method. Okay, so this is the basic distinction between your force method of analysis and displacement method of analysis. I'll just quickly brief you. Force method of analysis means that you are going to have your unknowns as forces, okay, and displacement method of analysis means you will consider your unknowns as displacements. Okay, so you will try to find displacement here and you will try to find forces in this method. Okay, this method uses compatibility equation, whereas this method uses equilibrium equation. Okay, when will you use force method of analysis? Obviously when the number of force unknowns are less than displacement unknowns. Okay, so your ds is less than dk.
On the contrary, you will use displacement method of analysis when your dk is less than ds. It is also called as flexibility and compatibility method, whereas displacement method is popularly called as stiffness method. Okay, and all these forces, all these methods we have to study in detail. Okay, so one by one you will get to know all these methods. First we will start with this force method of analysis. Okay, force method of analysis. Okay, force method of analysis is, okay, first we are starting with force method of analysis. I have named a number of method under this method, okay, but the concept of all the method is based on one and one method only. It is the method of consistent deformation. Okay, method of consistent deformation. Okay, from here on you should listen very carefully, okay, otherwise you won't be able to understand this. Suppose you have this type of structure. Okay, this cantilever is a determinate structure, right? Suppose if you have a pin joint also here. Okay, can you tell me the ds value for this beam? Okay, suppose the loading is vertical. Okay, then can you tell me the ds value of this beam? Ds value of this beam will be equal to how much? The number of reactions removed, that is only one. This reaction you will remove. Okay, let me draw it. This reaction you will remove. So number of reactions removed minus constraint added, 0. So your indeterminacy is equal to 1. One indeterminacy means that in this structure you cannot find out all the reactions with the help of equilibrium equations alone. सिर्फ equilibrium equation को यूज करके तुम इस बीम को सॉल्व नहीं कर सकते. तुमको एक और इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी कहीं से, ताकि तुम ये एडिशनल जो आर आ रहा है यहाँ पे उसको तुम निकाल पाओ. ठीक है, तो वो तुम जनरेट कर सकते हो. कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है. देखो, ये पिन जॉइंट है. पिन जॉइंट तुम्हें पता होगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता है. यानी ये जो ए पॉइंट मैंने बना रखा है, ये पिन जॉइंट का पॉइंट, यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 है. ठीक है, यही वो एडिशनल इक्वेशन है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है. ठीक है, यही वो एडिशनल इक्वेशन है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है ताकि तुम इस स्ट्रक्चर को सॉल्व कर पाओ. ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे इस स्ट्रक्चर को? देखो, डिफ्लेक्शन एट ए को तुम ऐसे लिखना. ठीक है, इसको लोडिंग जो भी लगी होगी वैसे ही लगी रहने दो. ठीक है, अब तुम इसको, इस बीम को दो पार्ट में तोड़ लो. एक पार्ट ये हो जाएगा तुम्हारा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर एक ये वाली रिएक्शन लगी हुई है आर. ठीक है, अब यहाँ पे ये बीम डिफ्लेक्ट करेगी और कुछ डेल्टा प्रोड्यूस करेगी. अभी मैंने सपोर्ट हटा दिया यहाँ से. ठीक है, ये बीम डिफ्लेक्ट करेगी और कुछ डेल्टा प्रोड्यूस करेगी. मान लो डेल्टा 1 बोल दिया मैंने. ठीक है, सिमिलरली तुम्हारी ये वाली बीम डिफ्लेक्ट करेगी और कुछ डेल्टा प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे. ठीक है, पर ये वाला जो पॉइंट है, जो ए पॉइंट है, वो रियलिटी में फिक्स्ड है. ठीक है, डेल्टा ए तुम्हारा 0 है. तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल 1 और डेल 2 मिलके नेट 0 डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, अगर साइन के साथ बोलूँ, ठीक है, अगर साइन के साथ बोलूँ तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ कि मेरा डेल 1 और डेल 2 सीधे सीधे बराबर होंगे, क्योंकि जितना ये लोड इसको नीचे ले जाएगा इस पॉइंट को, उतना ये रिएक्शन इसको ऊपर ले जाएगा. तभी ना जाके ये डिफ्लेक्शन तुम्हारा 0 हो पाएगा सपोर्ट पे, है ना. तो यही होगा. ऐसी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को जनरेट करते हैं. तो बेसिकली डेल ए यानी सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 है, यही वो एडिशनल इक्वेशन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं ताकि हम इस बीम को सॉल्व कर पाए. ठीक है, एक टाइप ये हो गया. एक टाइप मैं और दिखाता हूँ. जैसे मान लो कि ये फिक्स्ड है इस टाइप से, यहाँ भी फिक्स है और यहाँ भी फिक्स है और कुछ लोडिंग लगी हुई है पी. ठीक है, डीएस बता सकते हो इस बीम का? डीएस हो जाएगा नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड. पहले तो रिएक्शन बना लो. एक रिएक्शन यहाँ होगी, एक मोमेंट यहाँ होगा, रिएक्शन यहाँ होगी. डायरेक्शन सही कर लो. ठीक है, इस टाइप से कुछ रिएक्शंस होंगी. तो इसे कैंटिलीवर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी रिएक्शंस हटानी पड़ेंगी? एक ये और एक ये, 2. कंस्टेंट एडेड 0. ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है डीएस कैसे निकल रहा है तो सेकंड लेक्चर पे चले जाना वापस, जो इनडिटर्मिनेसी वाला लेक्चर है, वहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा ये कैसे निकल रही है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी. ठीक है, तो इनडिटर्मिनेसी 2 है. 2 होने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 इक्वेशन ही कमी पड़ रही है. ठीक है, 2 इक्वेशन कम पड़ रही हैं
ताकि मैं इसकी सारी रिएक्शंस की वैल्यू बता पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 4 रिएक्शन है, R1, M1, R2, M2। इन चारों की वैल्यू मैं पता नहीं कर सकता इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, मुझे 2 इक्वेशन की कमी पड़ रही है, यही मतलब होता है DS का। ठीक है, तो मुझे 2 इक्वेशन की कमी पड़ रही है, मैं वो 2 इक्वेशन कैसे जनरेट करूँ? जैसे हमने अभी किया था एग्जैक्टली वैसे ही। ये सपोर्ट है जिसको मैंने ग्रीन से कर लिया, A पॉइंट मान लो। ठीक है, A पॉइंट का एक तो डिफ्लेक्शन 0 है, A पॉइंट का स्लोप भी 0 है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट इस तरीके से होता है ना। तो A पॉइंट का तुम्हारा डिफ्लेक्शन भी 0 है और A पॉइंट का स्लोप भी 0 है। यही वो 2 एडिशनल इक्वेशंस हैं जो तुम ढूंढ रहे हो। इन 2 एडिशनल इक्वेशंस को तुम यूज करके R2 और M2 की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी पूरी बीम में सारी रिएक्शंस तुम बता सकते हो। 2 इक्वेशन की कमी पड़ रही थी तो वो हमने ऐसे निकाल ली। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? इस बीम को तुम्हें 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। देखना मैं इसको 3 पार्ट में तोड़ रहा हूँ कैसे। ये हो गया, एक तो लोडिंग लगी हुई है एक बीम पे प्लस, ठीक है, एक बीम पे ये R2 लगा हुआ है दूसरा, ठीक है, और तीसरा जो है, थोड़ा नीचे आ जाओ, तीसरा जो है उसमें ये वाला मोमेंट M2 लगा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये वाली बीम डिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरीके से, कुछ del1 प्रोड्यूस कर रही है मान लो। ये वाली बीम डिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से, कुछ del2 प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और ये वाली बीम डिफ्लेक्ट होगी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये del3 प्रोड्यूस कर रही है। पॉइंट तो वही है सेम तीनों में, ये फ्री एंड जो हमने बना रखा है तीनों ए ही है, और ए का नेट डिफ्लेक्शन कितना है? 0 है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि del1, ठीक है, del1 प्लस del3 इज इक्वल टू del2। क्योंकि मैंने डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दी है इसलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि del1 प्लस del3 इक्वल टू del2। तब जाके इन तीनों को जब तुम सुपर इम्पोज करोगे तो इस पॉइंट की डिफ्लेक्शन कितना हो पाएगा? 0 हो पाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ईजी है। सेम चीज तुम थीटा के साथ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ θ1 प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ θ2 प्रोड्यूस हो रहा होगा, यहाँ पे फिर से कुछ θ3 प्रोड्यूस हो रहा होगा। नेट थीटा तीनों का मिला के कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि तुम्हारी ओरिजिनल बीम में यहाँ पे कुछ भी स्लोप नहीं आएगा एंड पे। तो ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी और ये तुम्हारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। इन्हीं 2 इक्वेशंस की हमें ज़रूरत है ताकि हम इस बीम को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सारे मेथड्स में, फोर्स मेथड में हमको एग्जैक्टली यही प्रोसीजर अप्लाई करना है सारे मेथड्स में, सिर्फ निकालने का तरीका अलग होगा। निकालने का तरीका मतलब, ठीक है, अब तुमने एक बार इक्वेशंस बना ली तो तुम्हारी इक्वेशंस में डेल्टा आ रहा है और थीटा आ रहा है। अब डेल्टा और थीटा निकालने के बहुत तरीके हैं, या तो तुम स्टैंडर्ड मेथड से चले जाओ, ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड के अलावा तुम जा सकते हो मोमेंट एरिया से भी जा सकते हो, ठीक है, या बाई पार्ट्स भी जा सकते हो मोमेंट एरिया, ठीक है, उसके अलावा तुम कॉन्जुगेट बीम से आ सकते हो, ठीक है, उसके अलावा तुम यूनिट लोड से आ सकते हो, ठीक है, और उसके अलावा तुम कैस्टिग्लियानो थ्योरम से जा सकते हो। ठीक है, कैस्टिग्लियानो थ्योरम से आ सकते हो। तो डिफ्लेक्शन और रोटेशन निकालने के तरीके अलग अलग हैं, पर कॉन्सेप्ट सारे मेथड्स का सेम ही है। ठीक है, तो फोर्थ मेथड में ये सारे मेथड आते हैं, कॉन्जुगेट बीम, यूनिट लोड, कैस्टिग्लियानो। सिर्फ डिफ्लेक्शन निकालने के तरीके अलग अलग हैं। जो हमने अभी तक पिछले 5 लेक्चर में पढ़ा है डिफ्लेक्शन निकालना, वो सारा हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि सारे मेथड्स तुम्हें पहले से क्लियर हैं। ठीक है, तो पहला वाला हम स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड मेथड, तुम्हारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, तुम्हें जो मेथड में तुम्हें कंफर्टेबल फील हो उस मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ जिसका मैंने एग्जांपल दिया था। ये फिक्स है और ये पिन जॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पी लोडिंग लगी हुई है। ठीक है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है। इस बीम को सॉल्व करना मतलब इसकी सारी रिएक्शंस तुम्हें बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक R1 है, एक R2 है, और यहाँ पे कुछ मोमेंट भी होगा M, है ना। DS बता सकते हो मुझे इसका? DS मेरे ख्याल से हम पहले ही देख चुके हैं, इसका DS कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी एक इक्वेशन की मुझे बस ज़रूरत है, और वो एक इक्वेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी, ये वाला पॉइंट, A पॉइंट बोल रहा हूँ मैं इसको। डिफ्लेक्शन ऑफ A पॉइंट इज 0। ठीक है ना, ये तो फिक्स सपोर्ट है, सपोर्ट तो मूव कर नहीं सकता, तो इसका डिफ्लेक्शन 0 है। यही तुम्हारी एडिशनल इक्वेशन है। अब डेल्टा ए को मैं कैसे लिख रहा हूँ देखना, स्टैंडर्ड मेथड से जाना है मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। मैं इसी बीम को ब्रेक कर ले रहा हूँ 2 पार्ट में। एक तो मैं इस पर लोडिंग लगा दे रहा हूँ P की, ठीक है, और एक
ठीक है, एक पे मैं ये रिएक्शन लगा दे रहा हूँ R2, ठीक है। सेम चीज़ है, इस बीम को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इन दोनों में स्प्लिट करके, सेम ही चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा डेल, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, से इसको डेल 1 कर लो, इसको डेल 2 कर लो, ठीक है। तो जो नेट डेल्टा होगा तुम्हारा, यानी डेल 1 माइनस डेल 2, वही तुम्हारा डेल्टा ए है और वो तुम्हारा 0 है, ठीक है। कहने का मतलब है कि डेल 1 और डेल 2 बराबर होने चाहिए, तभी इस सपोर्ट का जो नेट डिफ्लेक्शन है वो 0 हो पाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड से तुम्हें डिफ्लेक्शन निकालना है। देखो ये वाला तो निकालना आसान है, डेल 1 निकालते हैं, ठीक है। डेल 1 निकालते हैं, कैसे निकालोगे डेल 1? ये मैंने तुम्हें बताया था शायद, यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ रादर, ठीक है, इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट होगी। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाली वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ये कितनी आ जाएगी, अगर ये वाली लेंथ को मैं l/2 कर लूँ, ठीक है, ये l/2 है और ये l/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, p l³/3ei, ठीक है। और इसके आगे का पार्ट पे चूंकि लोडिंग नहीं है, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा स्ट्रेट लाइन रहता है, तो तुम इसका थीटा पता कर लो, थीटा कितना आ जाएगा, ये वाला p l² l/2 है बाय 2ei, ठीक है। वही थीटा ये भी होगा, ठीक है, और ये वाली लेंथ l/2 है, तो tan थीटा से तुम क्या ये ब्लैक वाली वैल्यू बता सकते हो, ठीक है, कितनी आ जाएगी ये ब्लैक वाली वैल्यू, ठीक है। इसको से x बोल लेते हैं, ठीक है, और ये वैल्यू तो हम पहले पता कर चुके हैं, ये डेल्टा है, ठीक है। तो तुम्हारा जो ए पॉइंट का डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ से, जिसको हमने डेल 1 बोला था, ठीक है, वो आ रहा है डेल्टा प्लस एक्स, ठीक है। डेल्टा तुम्हारा हो जा रहा है कितना, p, ये ऊपर लिखा है मैंने, p l/2³ / 3ei, और x तुम्हारा हो जा रहा है कितना, l/2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू भी मैंने यहाँ लिख रखी है pl²/2ei, l तुम्हारा l/2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ रहा है p l/2²/2ei, तो ये मेरे ख्याल से तुम्हारा डेल्टा 1 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा 1 की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो, चाहो तो सॉल्व कर लेना, p थोड़ा बहुत कर देता हूँ सॉल्व, p l³/24ei हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा p 16 हो जाएगा मेरे ख्याल से नीचे, ठीक है, 16 p l³/16ei, ठीक है। मेरे ख्याल से 48ei LCM आ जाएगा, और 2 और 3 5 आ जाएगा ऊपर, तो 5pl³/48ei आ जाएगा तुम्हारा डेल 1, ठीक है। डेल 2 तो सिंपल है एकदम, डेल 2 कितना हो जाएगा, डेल 2 हो जाएगा p तुम्हारा r2 है यहाँ पे, r2 l³/3ei, ठीक है। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या थी हमारी, कि डेल 1 बराबर है डेल 2 के, ठीक है, पुट कर दो, तो r2 l³/3ei बराबर हो गया 5pl³/48ei के, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो r2 तुम्हें मिल जाएगा, मेरे ख्याल से r2 कितना आ जाएगा, ei से ei कट जाएगा, 3 मेरे ख्याल से 16 हो जाएगा, ये l³ कट जाएगा, तो r2 तुम्हारा आ जाएगा 5p/16, चेक कर लेना कुछ अगर गलत हो तो कैलकुलेशन में, 5p/16 तुम्हारा r2 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारी जो बीम थी उसमें तुम्हें एक चीज़ पता चल गई, ये p है और इस जॉइंट पे जो रिएक्शन आ रही है वो 5p/16 है, ठीक है। अगर तुम्हें ये रिएक्शन पता चल गई तो तुम इक्विलिब्रियम इक्वेशन बस यूज़ करके ये दोनों रिएक्शन जो ब्लू से मैंने बनाई हैं उनको निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो, बड़ा सिंपल हो गया, r1 प्लस 5p/16 p के बराबर होना चाहिए, सिग्मा fy = 0 कर रहा हूँ मैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अब यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो r1 प्लस 5p/16 p के बराबर होना चाहिए, तो r1 कितना आ जाएगा, p माइनस 5p/16, मेरे ख्याल से 11p/16 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली रिएक्शन तुम्हारी 11p/16 आ जाएगी। सिमिलरली तुम मोमेंट निकाल सकते हो, इस a के अबाउट नेट मोमेंट 0 कर देना, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, a पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट को 0 कर देना, कितना आ जाएगा, p इंटू l/2, इसका आ जाएगा तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, माइनस m का क्लॉकवाइज माइनस r1 इंटू l इक्वल टू 0, r1 तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से तुम m भी निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड।
एक क्वेश्चन और मैं और बता देता हूँ स्टैंडर्ड मेथड पे, ठीक है। अगर इस टाइप से दिया हो तुम्हें, सेम क्वेश्चन है, ये फिक्स्ड है, ये पिन है, ठीक है। रादर देन अप्लाइंग अ पॉइंट लोड, मान लो तुम्हारे यहाँ एक्सटर्नल मोमेंट इस टाइप का लगा हुआ है 20 का, ठीक है। तुमको रिडंडेंट निकालना है, सेम बीम है, DS1 है, यानी मुझे सिर्फ एक इक्वेशन की ज़रूरत है इसको सॉल्व करने के लिए। वो इक्वेशन सेम रहेगी मेरी कि ए पॉइंट का मेरा नेट डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर से तुम इस बीम को दो पार्ट्स में तोड़ लो, ठीक है। ये तुम्हारा 10 हो गया, यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगी R2, तो एक तुम R2 लगा लो, प्लस एक जो तुम्हारी गिवन लोडिंग है 20 की वो लगा लो, ठीक है। तो ये वाली बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये del1 प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे, और ये इस लोडिंग के कारण del2 प्रोड्यूस करेगी। पर ये जो नेट है इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन वो 0 होना चाहिए, उसके लिहाज से तुम्हारा del1 और del2 को बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। del1 तो हमें पता ही है कितना हो जाएगा, R2 L³ अपॉन 3EI, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे L की। del2 कितना हो जाएगा, ये क्या मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड केस है, ml² अपॉन 2EI आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो M2 है 20 है, L² डिवाइडेड बाय 2EI, चेक कर लेना एक बार। EI कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 से ये 10 हो जाएगा, ठीक है। एक मेरे ख्याल से यहाँ पे L बच जाएगा और ये L² कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 10 इंटू 3 अपॉन L आ जाएगा तुम्हारा R2। L की वैल्यू पुट कर दोगे 10, तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा R2 आ रहा है 3, ठीक है। मिल गई तुमको ये रिएक्शन 3, तो तुम बाकी चीज़ें अपने आप निकाल सकते हो। अब एक तुम्हें सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन की ज़रूरत है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन तुमको यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करते हैं। अब तुम अगर चाहो तो यही डिफ्लेक्शन तुम मोमेंट एरिया से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा फिक्स है, ठीक है, ये भी तुम्हारा फिक्स है, और यहाँ पर इस टाइप से लोडिंग लगी हुई है हाफ स्पैन पे, ठीक है। लोडिंग तुम्हारी 2 की है, और ये आधा स्पैन 10 का है और आधा स्पैन ये वाला भी 10 का है, ठीक है। ये पॉइंट तुम्हारा मान लो A है, ये पॉइंट तुम्हारा B है, तुमको रिडंडेंट्स निकालना है, तुमको इसमें रिडंडेंट्स निकालना है। पहले तो मुझे इसका DS बता दो, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी है इसकी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 आएगी, निकाल के आज ही दिखाया मैंने इसी लेक्चर में। तो इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 2 है, यानी मुझे 2 इक्वेशंस की ज़रूरत है इस बीम को सॉल्व करने के लिए। तो 2 इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल जाएंगी इस B पॉइंट से, कि एक तो इसका नेट डिफ्लेक्शन 0 है, एक इक्वेशन तुम ये यूज़ कर सकते हो, एक तुम्हारा इसका नेट रोटेशन 0 है, एक इक्वेशन तुम ये यूज़ कर सकते हो। जो 2 इक्वेशन की मुझे ज़रूरत है वो ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं, तुम चाहो तो इसको स्टैंडर्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो इसको मोमेंट एरिया से भी कर सकते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं मोमेंट एरिया से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 अननोन्स है तुम्हारे पास, एक ये रिएक्शन है और एक ये कुछ मोमेंट है, से इसको M0 कर लेते हैं, इसको R0 कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं 3 पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, या रादर मोमेंट एरिया मेथड क्या कहता है कि डिफ्लेक्शन निकालने के लिए तुम्हें T चाहिए पड़ेगा, ओके। तुम क्या करो, इसका मोमेंट एरिया डायग्राम बना लो पहले तो, ठीक है। देखना, इस R0 का अगर मैं बना रहा हूँ अकेला, इस पॉइंट को तो फिक्स मानने की जरूरत ही नहीं, पहले से फिक्स है। इस पॉइंट के अबाउट इंडिविजुअली R0 का, M0 का और इस लोडिंग का, जैसे हमने सीखा था बाई पार्ट्स बनाना मोमेंट एरिया डायग्राम, वैसे ही तुम इसका डायग्राम बना दो, ठीक है। तो R0 का मेरे ख्याल से कुछ ऐसा आ जाएगा लीनियर, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, मेरे ख्याल से 20 R0 हो जाएगी, ये 10 + 10 20 इंटू R0, ठीक है। एक ही आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। एक और आएगा, ये M0 भी है तुम्हारा, M0 तुम्हें कांस्टेंट मोमेंट दे रहा होगा, तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा तुम्हारा इस टाइप का, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है ये वाली, ये M0 है, ठीक है। उसके अलावा
तुम्हारा इसका भी ये जो यूडीएल है इसका भी तुम्हारा आएगा रेड, ठीक है। इसका मेरे ख्याल से पैराबोलिक आ जाएगा इस टाइप का, ठीक है। वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 20 इंटू 5, मेरे ख्याल से 100 हो जाएगी वाली वैल्यू, ठीक है। समझ गए होगे। ये तुम्हारा इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया, ठीक है। चाहो तो बेंडिंग मोमेंट मान लो, या इसको अगर EI से डिवाइड करना है तो EI से भी इसको डिवाइड करके रख लो, क्योंकि हमें M/EI की डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है मोमेंट एरिया में। तो इसको तुम्हारा M/EI डायग्राम आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब मोमेंट एरिया डायग्राम बड़ा सिंपली कहता है कि अगर तुम्हारा क्या नेट एरिया जो होता है वो तुम्हारा थीटा बी माइनस थीटा ए होता है, ठीक है। और वो तुम्हारा ज़ीरो है, क्योंकि इस बीम के लिए तुम्हारा थीटा ए भी ज़ीरो है और थीटा बी भी ज़ीरो है। तो तुम्हारा नेट एरिया जो है इस कर्व का वो ज़ीरो होना चाहिए। नेट एरिया मतलब टोटल एरिया, ये पूरा एरिया ज़ीरो होना चाहिए पॉइंट्स ए और बी के बीच में, है कि नहीं। मोमेंट एरिया ने क्या कहा था, मोमेंट एरिया ने कहा था कि थीटा बी माइनस थीटा ए इज़ द एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब ए पॉइंट ए है, बी पॉइंट ए है, थीटा बी भी तुम्हारा ज़ीरो है, थीटा ए भी तुम्हारा ज़ीरो है। तो ये जो एरिया हो गया, ठीक है, ये जो एरिया हो गया पूरा ए और बी पॉइंट के बीच का, वो तुम्हारा ज़ीरो होना चाहिए नेट, ठीक है। एक इक्वेशन तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी। दूसरी इक्वेशन उसने कहा था कि टी बी बाय ए, जो कि बेसिकली डेल्टा बी ही है, ठीक है, वो भी तुम्हारा ज़ीरो है। और वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट बी, ठीक है, वो भी ज़ीरो होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा इस पॉइंट के अबाउट डिफ्लेक्शन ज़ीरो है। तो सेकंड इक्वेशन तुम ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखना नेट एरिया में लिख रहा हूँ, पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ ये वाली, ठीक है। क्या लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, नेट एरिया मुझे ज़ीरो करना है। तो ये ऊपर तो ये ट्राइंगल है, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू 20, ये लेंथ तुम्हारी 20 है ओवरऑल, ठीक है। और ये इतना तुम्हारा 10 है। हाफ इंटू 20 इंटू 20 R0 बाई EI, ठीक है, प्लस ये वाला एरिया पॉजिटिव है, कांस्टेंट M0 अपॉन EI इंटू 20, ठीक है, माइनस ये वाला एरिया तुम्हारा नेगेटिव है रेड वाला, ठीक है। इसका एरिया कितना होता है पैराबोला का, ये वाला मेरे ख्याल से 1/3 होता है, ठीक है, 1/3 ऑफ 100 अपॉन EI इंटू 10, चेक कर लेना एक बार, 1/3 ऑफ 100 अपॉन EI इंटू 10, ये तुम्हारा ज़ीरो होगा। एक इक्वेशन तुम्हारी R0 और M0 में ये आ गई, ठीक है, एक इक्वेशन तुम्हारी ये आ गई। सेकंड इक्वेशन तुम इससे निकालो, ये वाले कॉन्सेप्ट से, मोमेंट ऑफ एरिया शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब है कि ये तुम्हारा बी पॉइंट है ना, तो इसका कुछ एरिया है, उसका मोमेंट बी पॉइंट के अबाउट, ये भी कुछ एरिया है, इसका मोमेंट बी पॉइंट के अबाउट, और इसका मोमेंट बी पॉइंट के अबाउट, नेट ज़ीरो होना चाहिए। तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये तुम खुद कर लेना, ठीक है। सेकेंड पार्ट में तुम क्या करोगे, इनका इंडिविजुअल मोमेंट एरियाज का अबाउट पॉइंट बी तुम्हें ज़ीरो करना है। वो भी तुम्हें सेम इक्वेशन देगा, सेम टाइप की इक्वेशन देगा, R0 और M0 का फंक्शन होगा, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लेना, इसको कुछ और फंक्शन बोल लो f प्राइम। इन दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व करके R0 और M0 निकाल सकते हो। मैं हिंट कर दे रहा हूँ, तुम खुद निकाल लेना, ठीक है, सिंपल है। इस क्वेश्चन को चाहते तो स्टैंडर्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे,